सरदार तालिब हुसैन नकई। Bismillahirrahmanirrahim. I invite attention of the Minister for Energy, Power Division to a matter of urgent public importance regarding charging of enormous electricity bills from tube well consumers despite providing them subsidy, causing grave concern among the public. Ali Omar Khan साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। एक रिक्वेस्ट भी है और एक रिक्वेस्ट सर ये है कि थोड़ा अगर टाइम दे दें तो उमर यूब साहब को अभी कॉल भी चली गई है, वो वैसे आ तो जाते हैं, अभी थोड़ा सा लेट हैं, तो दूसरी जो कॉलिंग अटेंशन है अगर आप उसको ले लें तो मेरे ख्याल में हमारी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहिबा मौजूद हैं, हेल्थ वाला अगर आप ले लें तब तक उमर साहब आ जाते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है जी कि तिलावत और नात के दौरान अगर तमाम मेंबर साहिबान जो हैं खामोशी से उसको सुन लें, क्योंकि एक एहतराम का भी है, क्योंकि जब कौमी तराना है तो उसके लिए हम सब खड़े होते हैं और हम सब खामोश होते हैं। कौमी तराना हम सब की शान है, आन है, लेकिन बहरहाल इंसानी कलाम है, तो कुरान और नात के सामने अगर तिलावत हो रही है तो रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर 2-3-4 मिनट की हम खामोशी इख्तियार कर लें तो उससे ऐवान की। जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी, थैंक यू। आइटम नंबर 3 मिस्टर फैजुल्ला साहब। नहीं, वो हमने डिफर कर दिया, वो मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, उसके लिए हमने थोड़ा उसको वो कर दिया। मिस्टर फैजुल्ला चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, उसका कोई है, फाइनेंस कमेटी का कोई मेंबर है इधर? जी नवीद कमर साहब प्लीज। Sir, I beg to move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Loan for Agriculture, Commercial and Industrial Purposes Act 1973 in its publication to such areas in the Federation as are not included in any province, the Loans for Agriculture, Commercial and Industrial Purposes Amendment Bill 2019 till today be condoned. Now I put the motion to the House. It has been moved that delay in the presentation of the report of Standing Committee on the bill further to amend the Loans for Agriculture, Commercial and Industrial Purposes Act 1973 in its application to such areas in Federation as per not included in any province. The Loans for Agriculture, Commercial and Industrial Purposes Amendment Bill 2019 till today be condoned. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it. Consequent, the motion is adopted. Item number 4. Naveed Kamar Sahab, please. Sir, I would like to present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Loans for Agriculture, Commercial and Industrial Purposes Act 1973 in its application to such areas in the Federation as are not included in any province, the Loans for Agriculture, Commercial and Industrial Purposes Amendment Bill 2019. The report of Standing Committee on the bill further to amend the Loans for Agriculture, Commercial and Industrial Purposes Act 1973 in its application to such areas in the Federation as are not included in any province. The Loans for Agriculture, Commercial and Industrial Purposes Amendment Bill 2019 stand presented. Item number 5, Mr. Riaz Patiana Sahab, Chairman Standing Committee Law and Justice. Naveed Kaur Sahab, please. इत्तेफाक से सर इन सब कमेटियों का मेंबर हूँ। I beg to move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Code of Civil Procedure 1908, the Code of Civil Procedure Amendment Bill 2020 till today be condoned. Now I put the motion to the House. It has been moved that delay in the presentation of the report of Standing Committee on the bill further to amend the Code of Civil Procedure 1908, the Code of Civil Procedure Amendment Bill 2020 till today be condoned. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it and constituted motion is adopted. Item number 6, Naveed Kamar Sahab. I beg to present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Code of Civil Procedure 1908, the Code of Civil Procedure Amendment Bill 2020. The report of Standing Committee on the bill further to amend the Code of Civil Procedure 1908, the Code of Civil Procedure Amendment Bill 2020 stand presented. Item number 7, Munazzah Hassan, Chairperson Standing Committee on Climate Change. As Chairperson Standing Committee on Climate Change, I present the periodical report of the committee for the period January to June 2019 as required by the Rule
234A of the Rules of Procedure and Conduct of the Business in the National Assembly, 2007. The periodical report of committee for the period January-June 2019 as required by Rule 234A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 stand presented. Item number 8, Rana Tanveer Hassan Saab, Tanveer Hussain Saab, Naveed Kanwar Saab. सर सॉरी आज सारी शायद वो कमिटीज़ हैं जिसका मैं खुद मेंबर हूँ जी जी प्लीज आई कैन डू दिस बट दैट्स अबाउट इट उसके आगे नहीं हूँ सर आई beg to present the periodical report of the committee for the period 21st December 2018 to 30th June 2019 as required by Rule 234A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007. The periodical report of the committee for the period 21st December 2018, 30th June 2019 as required by Rule 234A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 stand presented. Item number 9, Chaudhry Iftikhar Nazir Sahab. है कोई इसका? इमरान खटक साहब, आप इसको पेश करें. Item number 9. I, on behalf of Chairman Standing Committee on Standing Committee on Defence Production to present the periodical report of the committee for period January-June 2019 as required by Rule 234A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007. The periodical report of the committee for the period January-June 2019 as required by Rule 234A of Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 stand presented. Item number 10, Mr. Bilawal Bhutto. Naveed Kanwar Sahab. कौन कर? आप कर लेंगे? जी दावर साहब, मोहसिन दावर साहब. On behalf of Chairman Standing Committee on Human Rights, I beg to present the periodical report of the committee for the period January to June 2019 as required by Rule 234A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007. The periodical report of the committee for the period January-June 2019 as required by Rule 234A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 stand presented. Item number 11, Rao Mohammad Ajmal Khan, Ajmal Saab. Rao Mohammad Ajmal, Agriculture Committee. Nosheen Hamid, madam. Nosheen Hamid. Sir, on behalf of Chairman Standing Committee on National Food Security and Research, I present the periodical report of committee for the period January to June 2019 as required by the Rule 234A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007. The periodical report of the committee for the period January-June 2019 as required by Rule 234A of Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 stand presented. Item number 12, Malik Mohammad Amir Dogar Sahab. Dogar Sahab. उसकी जगह कौन है? इस कमेटी में और कौन है? Standing Committee on Government Assurances. Dr. Shahnaz Baloch, Madam, please, up. 12 number. 12 number, yes, sir. I, on behalf of Malik Muhammad Ahmed Dogar, stands to present the committee Government Assurance, present the periodic report of committee for the period January 2019 as required by Rule 234A of the Rule of Business, Procedure and Conduct of Business in National Assembly 2007. The periodical report of the committee for the period January-June 2019 as required by the Rule 234A of Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 stand presented. Item number 2. Sardar Talib Hassan Nakai, please. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. स्पीकर साहब, अगर आप मुझे एक इजाज़त दें तो मैं एक ज़ाती वज़ाहत कर दूं.
आ गए हैं मिनिस्टर। मैं एक ज़ाती वजाहत कर दूं। जी जी। उमर अयूब साहब के जब पिछला एक सेशन हुआ था तो मैंने कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे इनके लिए जिसके लिए मैं माज़रत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी माज़रत को कबूल कर लेंगे। जी प्लीज। जी, आई इनवाइट attention of the Minister for Energy Power Division to a matter of urgent public importance regarding charging of enormous electricity bills from tube well consumers despite providing them subsidy, causing grave concern among the public. उमर अयूब साहब प्लीज। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर साहब, सरदार तालिब हसन नकवी साहब ने जो बात की है इनका बड़ापन है। मैं इनका छोटा भाई हूँ। हम लोग और हमारा ख़ानदान जो है इसी हाउस में सर्व कर चुके हैं। तो सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपके अल्फाज का जी, आपके नेक अल्फाज का। जनाब स्पीकर, जो सरदार साहब ने बात की है ट्यूबवेल्स के हवाले से, 2-3 चीज़ें मैं आपके गोशगुजार करता चलूँ और हाउस के। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसका जो इस वक्त ट्यूबवेल्स के ऊपर फ्लैट एक जो सब्सिडी दी जा रही है वो ₹5.35 की थी, नंबर 1। नंबर 2, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स या जनरल सेल्स टैक्स इसमें शामिल नहीं है। दूसरी अहम चीज़ जो फ्लक्चुएशन या आती है आपके, क्योंकि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 2 चीज़ों पे मुनसर होती है, आपकी इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें और उसके साथ साथ आपकी रुपए की कीमत बैनुल-अक़वामी मंडी में बिलखसूस डॉलर के साथ लिंक्ड, उस पर या उतराव चढ़ाव आता है तो उसका असर पड़ता है। तो अक्सर साथी हमें कहते हैं कि जी गुज़िश्ता पिछले दिनों में तेल की कीमतें तो नीचे आई हैं, तो उसका एक दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो है रुपए की कीमत, वो भी उस पर असरअंदाज होता है। ये 2 वजूहात हैं जिसकी वजह से आपकी ट्यूबवेल के रेट्स में उतराव चढ़ाव या वेरिएशंस आती हैं। इसके अलावा ये मैं वाज़ेह कर दूं कि या कहीं पे एरोनियस बिलिंग है या कोई और चीज़ है तो वो हमें एजुकेट करें। हमारे साथी जितने भी ऑनरेबल मेंबरान हैं वो हमें बताएं उसका फिल फॉर, चाहे वो मैपको के एरिया में हो, चाहे वो लेस्को में हो या जहाँ पे भी हो, हमें बताएं तो हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। एक और अहम बात मैं करता चलूँ कि फ़खर इमाम साहब मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद नहीं है अपनी मसरूफियत की वजह से, पर प्राइम मिनिस्टर साहब की ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। स्पीकर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग कॉल की थी जिसमें मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी सईद फ़खर इमाम साहब भी मौजूद थे, मैं भी था, असद उमर साहब भी थे, बाकी हम लोग थे। तो वहाँ पे यही डिसाइड किया गया था कि एक कमेटी बनेगी बुनियादी तौर पे, जो कि फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सब्सिडी देनी है। ₹5.35 फ्लैट पे रखने के लिए जो सब्सिडी दरकार है वो सालाना 29 अरब रुपए है। तो उसके ऊपर वो मोडेलिटी तय कर रहे हैं कि वो किस तरह करना है, टारगेटेड सब्सिडी करनी है, ओवरऑल करनी है। तो मेरा ख्याल है अगले चंद दिनों में उसके रिजल्ट हमें आ जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पावर या फिर हमारी जो नीचे डिस्कोज हैं उनको हमने डायरेक्ट करना होता है कि आपने ये रेट लागू करना है। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जी, सरदार तालिब हुसैन नकवी टू आस्क वन क्वेश्चन प्लीज। स्पीकर साहब, मैं ज़बान में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, 70% लोग इससे वाबस्ता हैं, बेशक वो छोटा किसान हो, हारी हो, काश्तकार हो या ज़िम्मेदार हो। अगर ये तबका खुशहाल या खुश नहीं रह सकता तो ओवरऑल अगर सिनेरियो लें, मुल्क की इकानमी या मुईशत पर बड़े मनफी असरात पैदा होंगे। यहाँ मिनिस्टर साहब ने बात बिल्कुल ठीक की है, बल्कि जब गवर्नमेंट बनी है उससे चंद माह बाद इन्होंने यही बताया था कि 5.350 हम चार्ज करेंगे ट्यूबवेल पे पर यूनिट। अब मेरी कंटेंशन ये है कि जी एक हमारी नेपरा है, ये पता नहीं नेपरा ब्रदर है कि नेपरा सिस्टर है, ये बीच में से कहाँ कूद आता है। अगर आप नेपरा के रेट्स देखें जो बिलों पे आ रहे हैं
वो वेरी कर रहे हैं 11 रुपये से लेके 20 रुपये तक। जो सब्सिडी है रेट वो 5 रुपये से 12 रुपये तक वेरी कर रही है। ये बहुत अच्छा कदम है कि 5.350 तो आ गया, लेकिन सबसे बड़ा अलमिया क्या है, जो बम क्या चल रहा है कि इतने ज़्यादा एडिशनल टैक्सेस है जिससे किसान की कमर टूट जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आपको 50,000 का बिल देना है तो लाख रुपए तो टैक्सेस ही आ जाएंगे। इसका मतलब है अगर छोटे की मैं बात करूँ, छोटे किसान काश्तकार की, तो 1.5 लाख वो बेचारा कहाँ से देगा। मेरी ये दरख्वास्त है मिनिस्टर साहब से, और इन्होंने एक बात सही भी की है, कोरोना आया जानलेवा है, लेकिन इसमें इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी इकॉनमी को हम ठीक कर सकेंगे। कोरोना तो अभी चलना है लेकिन इकॉनमी पे अच्छे असरात आएंगे। तो मैं इनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास है टैक्सेस की, कि जनाब ये बताएं कि जो इजाफी टैक्स लिए जा रहे हैं क्या तजवीज़ आ रही है कि इनको वापस किया जाए। कम तो मैं नहीं कहूँगा, मेरा दिल है कि इसको अगर वापस ले लें तो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर इंशाल्लाह ताला, थैंक यू जी, मुझे यकीन है कि बहुत डेवलप करें। उमर अयूब साहब प्लीज। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर साहब, सरदार साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम एक शोबा है। उसकी बुनियादी वजह है कि अनाज होगा तो हम लोग कुछ खाए पिएंगे, और पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे हम लोग एग्रीकल्चरल हमारा मेन स्टे है। हमारे एम्प्लॉयमेंट, हमारी मईशत के हवाले से भी और हमारी रोज़गार के हवाले से भी। इसके अलावा जनाब स्पीकर, मैं उस मीटिंग में जिसका मैंने हवाला दिया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने डायरेक्शन दी, उन्होंने कहा जी एग्रीकल्चरल सेक्टर को, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको कोट करता हूँ, हर हालत में हमने सपोर्ट करना है, हर हालत में हमने सपोर्ट करना है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने डायरेक्शंस दी मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी को और डॉक्टर हफीज शेख साहब को, ये मेरे सामने। इसके अलावा जनाब स्पीकर, जिस तरह मैं पूछना चाहता हूं, क्या उसका कोई टाइम लाइन है? जी, उन्होंने, मैं वही बात करता हूं, मैंने पहले भी वजाहत कर दी कि हमने एक चीज़ मिनिस्ट्री ऑफ पावर में हमने इम्प्लीमेंट करनी है। पैसा जो है वो दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, जिनको वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हिदायत दी है, और मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी के वो क्या लाए अमल बनाया जाएगा कि आपने या ये सब्सिडी देनी है तो उन काश्तकारों को ट्यूबवेल्स को दी जाए जो कि इसके असल मुस्तहिक हैं। तो वो लाए अमल जो है मेरा ख्याल है उस पर तरीक़ेकार प्रोविंसेस का मिल के मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी फाइनलाइज कर रही है। उनको 2-3 हफ्ते का ही टाइम दिया था वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, ये तकरीबन 1.5 हफ्ते पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन्हीं दिनों में सामने आ जाएगा। सरदार साहब ने एक दूसरा क्वेश्चन किया टैक्सेस के हवाले से, तो मैं फिर ज़रा रिपीट कर लेता हूँ जनाब स्पीकर कि 5 रुपये 35 पैसे बेस रेट है जो कि फ्लैट किया गया था, जिस एक रेट आपने तयन उसका किया गया था, उसके ऊपर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जिसमें 2 वेरिएबल्स आते हैं, आपकी इंटरनेशनल डॉलर वेरिएशन, रुपए की वेरिएशन आ जाती है, और तेल की कीमत या नीचे चली जाए, रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में या ज़्यादा हो तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और उसके साथ फिर आपका GST। ये सारी चीज़ें या इकट्ठी कर दें, आपका 5 रुपये 35 पैसे पर रखने के लिए जो सालाना सब्सिडी दरकार है वो 29 अरब रुपए है। इसके अलावा जनाब स्पीकर, या फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का भी आपने करना है, वो तकरीबन आपको ये टोटल जो है ये तकरीबन 52 बिलियन रुपीस पे चला जाता है, और GST भी उसमें शामिल कर दें तो ये तकरीबन 61-62 बिलियन रुपीस पे चला जाता है। ये ओवरऑल इम्पैक्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो इस कोविड के हालात में जो हम पे ऊपर फिस्कल प्रेशर्स भी हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को PM साहब ने ये टास्क दिया हुआ है कि वो लाएअमल बना के तो सामने लाएं। बहुत शुक्रिया। हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी टू आस्क फर्स्ट क्वेश्चन। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जो इस दिन दिलाना चाहता हूँ कि जो किसान हमारे ज़री ट्यूबवेल के लिए
कनेक्शन के लिए दरख्वास्तें जमा कराते हैं, उसमें ये चेक करवाएं कि तकरीबन 6-7 माह गुजर जाते हैं। जब उनकी फसल लगाने का टाइम होता है उस वक्त उनको कनेक्शन नहीं मिलता। तो ये भी किसानों के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसके लिए एक टाइम लाइन जो है वो मुतय्यन किया जाए कि जब उनका डिमांड नोट्स जो वो जमा कराते हैं जमा हो जाए, उसके बाद किसानों को जो है वो उसका कनेक्शन जो है वो उसके टाइम के अंदर दिया जाए। दूसरा जो नकई साहब ने जिसकी तवज्जो दिलाई है आपकी कि किसान के बिल के ऊपर जो टैक्स लगे हुए हैं उन टैक्स को जो है वो ख़त्म किया जाए। बहुत मेहरबानी जी। उमर साहब, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है और आप उसको पर्सनली देख लें और उसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाएं, क्योंकि हमने अपने फार्मर को तो सपोर्ट करना है। प्लीज़। जनाब स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर साहब, मैं फिर आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स ही रखूँगा। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक्सिक्यूट करना है। इसकी सब्सिडी की अमाउंट जो बेसिक सब्सिडी है वो 29 अरब रुपए है कि 5 रुपये 35 पैसे पे रखा जाए। इसके ऊपर जो भी टैक्सेस हैं उसका भी मैंने आपका टोटल आपको बता दिया, ये तकरीबन 62 अरब रुपए तक जाता है। उसका तयन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने करना है। ये हमारे जहन में एक बात होनी चाहिए। आपने भी कमेटीज हेड की हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ये डायरेक्शन दी है मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम साहब को और हफीज़ शेख साहब को कि हर हालत में फार्मर्स को, हमारे किसान भाइयों को, उनको सपोर्ट करना है, उनको सपोर्ट देनी है। उनके डायरेक्शंस हैं और मेरा ख्याल है चंद दिनों में उनकी रिपोर्ट और वो मैकेनिज्म आ जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने तो एक्सिक्यूट करना है। एक चीज़ मेरे भाई हाजी इम्तियाज़ साहब ने जो बात की है, मेरे ऑफिस आते रहते हैं, तो हाजी साहब आपसे दरख्वास्त है कि जो बिल्स की कॉपीज़, क्योंकि इनका गेपको का इलाका आता है गुजरांवाला इलेक्ट्रिक, तो कोई भी या बिल्स हों या कोई इनको कोई इशू हो वो मुझे बता दें जहाँ पे डिले हो रहा हो। डिले बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो बिल अपना जो अमाउंट डिमांड नोट या जमा होता है उसको फिल फॉर उनको लगाना चाहिए, वो ट्यूबवेल कनेक्शन। या कोई इशू है, कोई केसेस आ रहे हैं हमारे नोटिस में लाए, इंशाल्लाह ज़रूर एक्शन लेंगे। बहुत शुक्रिया। सईद फैजुल हसन टू आस्क वन क्वेश्चन। जी प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं भी तालिब नकई साहब की तायीद में जनाब मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि किसान के लिए जितना भी रिलीफ मुमकिन हो सके होना चाहिए। किसान चूँकि ज़राअत जो है हमारे मुल्क की बुनियादी ज़रूरत है और इसी से मुस्तहकम हो सकता है हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी, हमारा मुल्क। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो सके किसान को रिलीफ मिलना चाहिए। दूसरा, एक जनाब स्पीकर एक गुजारिश मैं ये करूँगा, एक निशानदेही है, वो ये है कि ये जो हमारे इदारे हैं इन पे थोड़ी नज़रसानी करें। ये माली में बड़ी ख़राबी की तरफ सफ़र था तमाम इदारों का, तो इसमें बेहतरी लाने की इंतहाई ज़रूरत है। जितनी जल्दी से जल्दी मुमकिन हो सके इदारों में इस्लाहात लाएँ ताकि लोगों को, पब्लिक को, आवाम को रिलीफ मिल सके, आसानियाँ पैदा हों। जी मेहरबानी। उमर साहब प्लीज़। जनाब स्पीकर, मैं शाह साहब की बातों की बिल्कुल तायीद करता हूँ जो कि सरदार तालिब नकई साहब ने भी की है और इम्तियाज़ चौधरी साहब ने भी की है। आपने भी डायरेक्शंस दिए हैं। बिल्कुल हम लोग खुद ज़रिए इस कॉलिंग अटेंशन को कमेटी में भेज लें आप बिल्कुल, ताकि इसको, और मैं इसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि 10 दिन के अंदर इनकी मीटिंग बुलाएं और इसके अंदर जो है ना एक प्रॉपर रिपोर्ट इस हाउस को पेश करें। बल्कि जनाब स्पीकर मेरी आजाना तजवीज़ होगी आपके सामने, आप स्पीकर हैं माशाल्लाह इस हाउस के, कि इसको आप फाइनेंस कमेटी को फैज़ कमोका साहब जिसको हेड करते हैं वहाँ पे भेज दें, क्योंकि तयन सब्सिडीज़ का वहाँ पे होगा, वहाँ पे सबसे आपको नहीं, ये बिल्कुल ये बनता है फाइनेंस कमेटी का। जी सर, फाइनेंस कमेटी में जाएगा, फाइनेंस कमेटी में जाए, फाइनेंस एंड रेवेन्यू वहाँ पे ज़्यादा। मैं ये ख़त्म करूँ जो इसमें ख्वाजा शिराज महमूद साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। शुक्रिया स्पीकर साहब। एक तो जाहिर है जो आपका फैसला है हमें कबूल होगा, लेकिन ये मुनासिब रहेगा कि आप भी एक कमेटी को हेड कर रहे हैं, उस कमेटी में भी देख लिया जाए सर इसको जो आपने एग्रीकल्चर में बनाई हुई है। ये सबसे अहम चीज़ें हैं जो यहाँ पे इस हाउस में आपके सामने फ्लोर ऑफ हाउस बातें हो रही हैं। 5 रुपये 35 पैसे का जो यूनिट है वो 10 रुपये तक जाकर पड़ता है किसान को। और सर ये जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक सर्कल है वो आपको इन्हीं चीज़ों में फंसाए रखता है।
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक डिसीजन ले लिया कि 5 रुपए 35 पैसे पे किसान को हम बिजली का यूनिट देंगे एग्रीकल्चर ट्यूबवेल के लिए, तो सर वो 5 रुपए 35 पैसे पे होना चाहिए। इसमें यह कोई चीज़ नहीं है कि आप उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डाल देते हैं, आप उसमें 2-3 और टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सर खुदा का नाम माने, मैं अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर थोड़ा सा असर्ट करें, प्राइम मिनिस्टर की बात को पूरा करें, हम सब की इज्जत होगी, हमारा वकार बुलंद होगा। ऐवान में आपको सर एक और अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान में अगर किसी सेक्टर ने ग्रोथ दिखाई है तो वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर है। इस कोरोना की पेंडेमिक में भी सिर्फ एग्रीकल्चर ने 2% से ज्यादा ग्रोथ दी है, बाकी तो तमाम सेक्टर्स नीचे की तरफ जा रहे हैं। सर खुदा का नाम माने, किसान से किया हुआ वादा पूरा करें। और मैं अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को एक और भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वाटर सप्लाई स्कीम्स पे स्पीकर साहब 28 रुपए यूनिट पड़ रहा है, 28 रुपए यूनिट। और पिछले साल से हमारी वजारत ने नेपरा में केस भेजा हुआ है कि इसको एग्रीकल्चर ट्यूबवेल के बराबर कर दिया जाए। सर लोग पीने का पानी मांगते हैं आपसे, खुदा का नाम माने इसको भी 5 रुपए 35 पैसे के ऊपर लेकर आए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, ख्वाजा शिराज साहब छोटे भाई हैं, हम लोग साथ हमने सर्व किया है। 2002 में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, जिस वक्त मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट था, फाइनेंस की थे, और बेहतरीन ये काम करते हैं माशाल्लाह। 2 चीज़ें मैं वाजे कर दूं जनाब स्पीकर के, सबसे पहली बात यह है कि जो आपका 5 रुपए 35 पैसे का रेट है उस पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और जनरल सेल्स टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, वो इससे अलहदा है जो इसके ऊपर चार्ज होता है। 5 रुपए 35 पैसे पे रेट रखने पे जो सब्सिडी है वो बनती है 29 अरब रुपया सालाना। इसके अलावा आप या फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी उस पर शामिल करना चाहते हैं तो कुल रेट आपका तकरीबन ये 51 बिलियन रुपए पे चला जाता है। इसके अलावा आप या जनरल सेल्स टैक्स भी उसमें शामिल करना चाहते हैं और फ्लैट रेट 5.35 पे रखना चाहते हैं तो ये कुल सब्सिडी सालाना 62 अरब रुपए सालाना पे चला जाता है। तो ये वो हकायक है जो हमें सामने मद्देनजर रखते हैं। जस्ट 1 मिनट, अली मोहम्मद खान साहब, आप ये मीडिया वालों को देख लें। अली मोहम्मद खान साहब, मीडिया का क्या इशू है, थोड़ा उसको चेक कर लीजिए प्लीज। तो इस पे मैं अपनी बात समेटता हूँ जनाब स्पीकर। जो वाटर यूज चार्जेस के हवाले से बात कर रहे हैं शिराज साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसका नोटिस हमारे साथियों ने, ख्वाजा शिराज साहब ने और बाकी साथियों ने भी किया था, और हमने केस बना के हमने नेपरा को भेजा कि वो बाकायदा इसका एक नया टैरिफ इंक्लूड करें, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ टैरिफ पिछले अदवार में जम किए थे। बाकायदा इसका जो आपके वाटर के ट्यूबवेल्स हैं, पीने के पानी के एक्सेट्रा, उनका बिलखसूस शहरी इलाकों में उनको ज़्यादा रेट चार्ज होता है, उसको रैशनलाइज करना है। हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। नेपरा ने अपनी हेयरिंग्स और वो तकरीबन मुकम्मल मेरा ख्याल कर चुके हैं, तो वो भी चीज़ हमारे नोटिस में, और उसको हम लोग परसू कर रहे हैं कि उसका नया टैरिफ इंसर्ट हो शेड्यूल ऑफ टैरिफ्स में। बहुत मरूब साहब, एक आप मेहरबानी करें कि एक मीटिंग कन्वीन करें कि जब काश्तकार जो है ना इस किस्म का बिल के लिए अप्लाई करे, ख़ासकर मीटर के लिए अप्लाई करे, या जो उसकी ज़रूरी रिक्वायरमेंट होती है बिजली के लिए, उसको फास्ट ट्रैक पे रख के पाकिस्तान के हर किसान को ये मिलना चाहिए और फास्ट ट्रैक पे मिलना चाहिए। शामिल होगी जनाब स्पीकर जी इंशाल्लाह। आइटम नंबर 13, कॉलिंग अटेंशन मिस मरियम औरंगजेब। मिस मरियम औरंगजेब, सर जी वो तो कॉलिंग अटेंशन है ना, ट्यूबवेल नहीं, मुझे फिर अलाउ करना है, फिर काफी लोगों ने बोलना है, फिर मैं, हाँ जी, अच्छा फिर आपको दे देते हैं, चलो मैं फिर उसको हाँ सर कॉलिंग अटेंशन देते हैं, नहीं आपको दे देते हैं जी। एक मिनट मैडम, आपका फिर ये चला जाए, मेरे ख्याल में ये ले लेंगे, ये इसका कॉलिंग अटेंशन लेके आपको मौका देता हूँ। इसके बाद प्लीज नंबर 13 ले, इसके बाद देता हूँ आपको, ये कॉलिंग अटेंशन लेके इसके बाद आपको देता हूँ। जी मैडम प्लीज। थैंक यू स्पीकर साहब। आई वुड लाइक टू इनवाइट अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर। सर इसके बाद आपको दे देते हैं। I would like to invite attention of the Minister for National Health Services Regulations and Coordination to a matter of urgent public importance regarding increase in the AIDS-related deaths in the country due to late diagnosis and poor adherence to treatment, causing grave concern amongst the public. जी कौन करेगा? डॉक्टर नौशीन हामिद प्लीज।
जिसे इन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर की तरफ तवज्जो दिलाई है। इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि एड्स का प्रोग्राम जो है वो 1987 में फेडरल गवर्नमेंट ने शुरू किया था, मगर आज की डेट तक उस वक़्त से लेके आज तक इसके लिए कोई डोमेस्टिक फंडिंग जो है गवर्नमेंट के तरफ से नहीं रखी गई थी, जिसमें इन लोगों की हुकूमतें भी शामिल हैं, और ये टोटली डिपेंडेंट था ग्लोबल फंड पे, फॉरेन फंडिंग के ऊपर ये डिपेंडेंट होता था। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि 2016 तक जो है ये एड्स जो है ये कुछ की पॉपुलेशंस थी, जो ड्रग इंजेक्शन यूजर्स थे, जो ट्रांसजेंडर्स थे और कोई MSW और FSW, ये पॉपुलेशंस थी जिसके अंदर ये होता था, मगर 2016 के बाद ये अब जनरल पॉपुलेशन में भी आना शुरू हो गया है। और उसकी मेन वजह ये है कि ये जो इंजेक्शंस जो हैं ये रीयूज़ होते हैं, और जो हॉस्पिटल वेस्ट जो है उसकी प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होती, और अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की वजह से। तो सर इसके ऊपर जो है वो इस वक्त इन सारी चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है। इंजेक्शन सेफ्टी के ऊपर प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बहुत सीरियस स्टेप्स लिए हैं, और वो डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो कि वन टाइम यूज़ की हों उसके लिए काम हो रहा है। सेफ़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए प्रॉपर कमेटीज़ बना दी गई हैं, और इसके ऊपर सेफ़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स जो हैं बन रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट खुद मॉनिटर कर रही है। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सर काम हो रहा है। जो वजह ये कह रही हैं कि ये इसका फैलने की और इसकी ट्रीटमेंट जो कह रही हैं कि नहीं हो रही है, सर एड्स जो है ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है। इसकी मिसाल मैं आपको ये दूंगी कि इस वक्त पाकिस्तान में एस्टिमेटेड 1,83,000 लोग जो हैं वो एस्टिमेटेड हैं कि एड्स के पेशेंट हैं, मगर रजिस्टर होने के लिए जो लोग सामने आए हैं वो सिर्फ 25,000 हैं, और उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट भी दी जा रही है और उनको मॉनिटर भी किया जा रहा है। सर एड्स का स्टिग्मा ऐसा है कि लोग सामने नहीं आते हैं, अगर ये बीमारी उनको होती है तो वो छुपाते हैं, और उस वक्त पता चलता है कि जब वो बिल्कुल क्रिटिकल स्टेज में आ जाते हैं। तो सर ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो है हम पेशेंट्स तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। जी Ms. Mariam Aurangzeb to ask one question. थैंक यू स्पीकर साहब। सबसे पहले मैं जी आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने ये एक इम्पॉर्टेंट कॉलिंग अटेंशन को रखा भी प्रायोरिटी के ऊपर, और मैं बात करने से पहले मुख्तसर बात करूंगी, लेकिन ये ज़रूर कहूंगी कि इस पे ये बियॉन्ड पॉलिटिक्स कॉलिंग अटेंशन है, और इसके ऊपर किसी किस्म की सियासत जो है उसको करना मैं समझती हूँ जुर्म है। पहली बात जी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेक्रेटेरिएट पार्लियामेंट में मौजूद है, जिसकी आपने भी सरबराही की और सरदार अयाज सादिक साहब ने इसको किया था। तो उसमें हमने एक कमेटी बनाई थी जो कि नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का होता है उसकी मॉनिटरिंग करता है, उसकी सर्वेलेंस करता है, और उसके अंदर अपडेट लेता था कि किन प्रोविंसेस के अंदर और इस्लामाबाद लेवल के ऊपर इसका स्प्रेड क्या है और टेस्टिंग रेट क्या है। तो पहले तो मैं आपसे भी कहूँगी कि फतियाना साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उसी कमेटी को फाल कर दिया जाए तो मिनिस्ट्री जो है वो वहाँ आके उसके ऊपर डिबेट भी कर सकती है, और पार्लियामेंटेरियंस जो डिफरेंट प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ एड का स्प्रेड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो उस पर भी कंट्रोल पाया जा सकता है। दूसरी बात जी मैं कहूँगी कि एक ग्लोबल एड फंड प्रोग्राम होता है और उसके अंदर फंडिंग आती है पाकिस्तान के अंदर। अभी तक जो उसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट ने वज़ा नहीं किया है, और पब्लिक रेसिपिएंट जो है, प्रिंसिपल रेसिपिएंट पब्लिक सेक्टर का और प्रिंसिपल रेसिपिएंट प्राइवेट सेक्टर का जो एलोकेशन का प्रोसेस है वो ड्यू प्रोसेस अभी तक फॉलो नहीं किया गया। मेरा ये भी सवाल है कि वो चेयर करते हैं ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, तो हमें ये भी बताया जाए इस ऐवान को कि वो कब प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसका एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, वो अखबार में इश्तिहार आता है, वो कब आएगा ताकि जो स्प्रेड है उसको कंट्रोल किया जा सके। एक और बात जी मैं ज़रूर कहना सवाल मेरा है कि अभी तक ग्लोबल फंड की मद तक पाकिस्तान में कितनी फंडिंग आई है, उसकी एलोकेशन फंडिंग का क्या क्राइटेरिया है, और जो टेस्टिंग रेट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीकर साहब, कोरोना में भी हमने देखा कि जब टेस्टिंग कम होती है तो पेशेंट्स भी कम होते हैं क्योंकि टेस्ट ही नहीं हो रहे होते। बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक सोशल स्टिग्मा कंसिडर किया जाता है, लेकिन इसके बहुत सी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो दूसरे ममालिक में जहां हमारे जैसे कल्चर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस भी किया गया है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। 57% इंक्रीज़ पाकिस्तान और फिलीपींस में इस वक्त दो ममालिक हैं पूरी दुनिया में जहां इतना इंक्रीज एड्स का हुआ है। तो ये सवालों के जवाब भी दे दें, और अगर आप डायरेक्शन दे दें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेक्रेटेरिएट को कि उस कमेटी को बिल्कुल हमने इसकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई है और अभी हम इसकी मीटिंग कर रहे हैं और इसका हम पूरा SDGs का एक पूरा प्लान बना रहे हैं। इस कमेटी में आप भी हैं तो इसमें इंशाल्लाह हम करते हैं। जी डॉक्टर नौशीन हामिद प्लीज़। सर सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगी, ये बहुत अच्छा सजेशन है कि अगर इसको पार्लियामेंट जो है ओवरसी करने के लिए SDGs कमेटी जो है वो फ़ाल हो जाए। सर ये जो फंडिंग का इन्होंने पूछा है वो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए जो
1 जनवरी 2018 टू 31 दिसंबर 2020 के लिए जो प्लेज किया गया था, अप्रूवल हुआ था ग्लोबल फंड का, वो 34.9 मिलियन US$ था। मगर उसके अलावा अभी रिसेंटली जो ग्लोबल फंड ने प्लेज किया है 71 मिलियन US$, वो 2021 से 2023 तक। और सर ये इसके अंदर वी आर इन अ प्रोसेस टू एलोकेट PKR 2 बिलियन जॉइंटली फॉर HIV एड्स एज मैचिंग ग्रांट। तो सर ये गवर्नमेंट भी इसके अंदर मैचिंग ग्रांट दे रही है। सर ये अंडर प्रोसेस है, ये ज़ाहिर है ये जो अमाउंट आ रहा है ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में जाएगा और बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट तरीके से जो इसका ड्यू प्रोसीजर है उसको फॉलो करवाया जाएगा। और उम्मीद है कि सर ये जल्दी ये चीज़ें जो है ना ये अपनी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। इस वक्त जो 45 सेंटर्स काम कर रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, उनके अंदर सर ये पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान, फेडरल, यहाँ तमाम ये सारे रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं। और ये सेंटर्स जो हैं इसके अलावा एक प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड जो ट्रांसमिशन हो जाती है वो बड़े हॉस्पिटल्स में है। और जहाँ पर मैं फेडरल गवर्नमेंट का बता सकती हूँ कि PIMS में जो है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अभी तक हमारा रिकॉर्ड है कि जो मदर से ड्यूरिंग डिलीवरी ट्रांसफ़र होता है 8 बच्चों में, वो एक केस भी ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ। तमाम डिलीवरीज जो हैं वो सेफ़ हुई हैं और HIV प्रिवेंशन हुई है। मगर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और मैं समझती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा इशू उठाया और आपकी ज़ेर निगरानी इसके ऊपर मज़ीद काम होना चाहिए। थैंक यू। Miss Romina Khurshid Alam, absent. Miss Shaza Fatma Khwaja. थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मेरा सवाल ये होगा, अगेन मैं मरियम की बात को रीट्रेट करूँगी कि अबव एंड बियॉन्ड ऑल पॉलिटिक्स, मैचिंग फ़ंड की बात की गई और ग्रांट जो $35 मिलियन आ चुका है। अगर हमें वाजे कर दिया जाए कि अभी तक कितना मैचिंग ग्रांट जो है वो डोमेस्टिकली अप्रूव हो गया है, क्योंकि कल अगर ग्लोबल फंड बंद हो जाता है तो हमारी डोमेस्टिक हेल्थ प्रायोरिटीज़ में HIV एड्स किधर लाई करता है ये हमें अंदाज़ा हो जाए इससे कि हम लोकली इसको कितना फ़ंड कर रहे हैं। दूसरा सर इसी से रिलेटेड एक बात है कि ये जो ओपियोइड्स हैं या जो ड्रग एडिक्शन है इससे एड्स बहुत फैलता है, तो इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर या चलें फेडरल के अंदर ही हमारे पास कितने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं जी अगेंस्ट द नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो अफेक्टेड है? जी मैडम, डॉक्टर नौशीन हामिद प्लीज़। सर ये जिस उसका एड का पूछ रही हैं कि जो पाकिस्तान ने मैचिंग ग्रांट देनी है वो मैंने आपको बताया कि 2 बिलियन जो है वो है, मगर ये अभी अंडर प्रोसेस है, इसके ऊपर वर्किंग हो रही है। ये थोड़े दिनों में फाइनलाइज हो जाएगी। मैं लेटेस्ट सिचुएशन जो है वो इनको थोड़े दिनों में मैं इनको अपडेट कर दूँगी उसके बारे में। सर ड्रग यूज़र्स का जो है वो हमें पता है कि ज़्यादातर प्राइवेट ड्रग जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और कुछ जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर ये ड्रग रिहेबिलिटेशन जो है वो जारी है जी। मिस शाइस्ता परवेज़। थैंक यू स्पीकर साहब। सर बहुत जवाब भी आ रहे हैं और हम सवाल भी कर रहे हैं, बट मैं सबसे पहले चाहूँगी कि मैं ये कॉलिंग अटेंशंस होते हैं, कल भी ये बात हुई थी कि हम यहाँ बात करते हैं, ये टाइम बार भी तो देना कि इतने अरसे में ये चीज़ हो जाएगी। ये ओपन एंडेड जो 2 साल तो गुजर गए, ओपन एंडेड होने से ये कुछ हो नहीं। अब आई कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन इज़ के जी इंक्रीज ऑफ ड्रग एडिक्ट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो यूजेबल सिरिंजेस की वजह से ये हो रहा है। तो गवर्नमेंट का क्या प्रोग्राम है ऑफ सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग और अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए? क्योंकि अभी भी आप जाएं तो मैं लाहौर से क्योंकि हूं तो मुझे नज़र आता है कि दाता साहब के बाहर कितने एडिक्ट्स बैठे हैं और वो एक दूसरे को इंजेक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग या टीवी पे प्राइम टाइम में कोई अवेयरनेस कैंपेन्स का कोई प्रोग्राम है गवर्नमेंट का? जी मैडम, डॉक्टर नौशीन हामिद। सर एक तो जो इन्होंने टेस्टिंग वगैरह का पूछा था, तो इस वक्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है और आगा खान यूनिवर्सिटी उसके दरमियान ये पार्टनरशिप हुई है और इसमें जो है ये वायरल लोड टेस्टिंग जो पूरे मुल्क में हो रही है उसकी कवरेज को जो है वो बढ़ाया जा रहा है। और सर बाकी जो ड्रग एडिक्ट्स का है वो ज़ाहिर है वो एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है, वो हेल्थ के नीचे नहीं आता, मगर उसके ऊपर भी ज़ाहिर है चूँकि इसका बड़ा क्लोज लिंक है तो मैं समझती हूँ कि उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत
ज़रूरत है। और ये जो हमारा जो HIV प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज हैं उनकी कवरेज को जो है वो बढ़ाने के लिए जो है वो ताकि 2030 तक का जो है वो प्रोग्राम तश्कील दे दिया गया है कि किस तरह उनको ग्रेजुअली जो है पूरे पाकिस्तान में बढ़ाना है। और ये 2030 तक का जो हमारा अपग्रेडेड प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर काम हो रहा है। जी राना तनवीर साहब प्लीज़। राना तनवीर साहब। राना तनवीर साहब। सर थैंक यू वेरी मच। मैं तो उस पर बात करना चाहता था, वो कर ले, उसी पे बात कर ले कि जो आप बजट डिस्कशन में नहीं थे जिस दिन मैंने स्पीच की, उस दिन मैंने कहा था कि एक आपने कमेटी एग्रीकल्चर में बनाई जिसको आप हेड कर रहे हैं, और वो कमेटी इसलिए आप हेड कर रहे हैं कि आपकी उसमें दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है और उसमें आपने बड़े मैयज़ लिए, बड़ी मीटिंग्स ली और बड़ी सीरियसनेस उसमें आपने दिखाई। स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली एक कमेटी को हेड कर रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है आपकी सजेशन का, आपकी रिकमेंडेशन का 1% भी नहीं है। और मैंने ये कहा कि जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन है इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, उन्होंने स्पीकर साहब ये कहा कि अब जो फ्यूचर है वो उस मुल्क का है जिसका एग्रीकल्चर बेस या सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अभी जो ये कोरोना की वजह से हुआ है वो कहता है वो सर्वाइव करेगा या तरक्की करेगा। लेकिन मैं आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री बताता हूँ, जब ज़ीरो GDP होती है ना बाकी सेक्टर्स की वजह से इकोनॉमी में, अगर आप थोड़ा ये हटा दें ताकि आवाज़ क्लियर आ जाए, 2-2.5% ग्रोथ सिर्फ एग्रीकल्चर की वजह से आती है। और लेकिन हमारी एग्रीकल्चर का ये हाल है कि साथ हमारे इंडिया है, वहाँ 50% फर्टिलाइज़र सस्ता वो सब्सिडाइज कर रहे हैं, 50% गवर्नमेंट पैसे दे रही है। इस तरह बिजली 100% फ्री है, वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो कर रही हैं। पिछले दौर में पंजाब गवर्नमेंट ने 50%, अगर उमर यूब साहब को पता हो तो खुद वो देते थे। अगर 10 रुपए का यूनिट है तो 5 रुपए पंजाब गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रहा था, खुद उसको मुतलका डिस्ट्रीब्यूशन लेस्को या गैपको या जो भी था उनको देता था। तो मैं कहता हूँ आप ये सारी चीज़ें रेफ़र ना करें, आप खुद इसको ऐड करें और इसको एनालाइज करें। अगर आपने इंडिया में 50s में क्या था, जब उन्होंने ये काम किया तो आज सरप्लस है, आज वहाँ एग्रीकल्चर, और उनका बड़ा थोड़ा एरिया है, ईस्ट पंजाब है या साउथ में कुछ थोड़ा सा एरिया है, जो 1 अरब और कुछ करोड़ लोगों को खिला रहे हैं और बाहर भी भेज रहे हैं। ये उन्होंने अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ सब्सिडाइज करके एग्रीकल्चर को फ्री दी, बिजली ट्यूबलों को, और साथ ही साथ फर्टिलाइज़र इनपुट्स 50% सस्ते किए और बीज अच्छे दिए। वहाँ रिसर्च की, यहाँ रिसर्च का हाल को देखिए सर, आप 60s के बाद एक यूब हमारे राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शिकागो, आज तक उन्होंने कोई नहीं निकाला बीज, सिर्फ वो बाहर से मंगवाते हैं चाइना से या इंडिया से, तो हमें दे देते हैं वहाँ ग्रो करके। इस तरह वीट का हमने कुछ नहीं किया। तो आप इसको एनालाइज करें कि फॉल्ट कहाँ है, फिर जोनिंग करें। मैं एक चीज़ आपके गन्ने की जोनिंग क्यों नहीं वजाहत करना चाहता हूँ। आपकी ये असल बड़ी में सर्विस ये कॉलिंग अटेंशन मैंने अपने शौक से डाला है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि इसको हमने ऑलरेडी अपने एग्रीकल्चर कमेटी जो हमारी मेन कमेटी उसमें हम प्रोसीडिंग कर रहे हैं। नवीद कमर साहब भी उस मीटिंग में हमारे साथ थे और अजमल साहब भी हमारे साथ थे, और हमने उसके लिए एक सब कमेटी बनाई है, बकर इमाम साहब क्योंकि मिनिस्टर है उसके, और हमने उससे कहा कि हम अब हमें 15 दिन के अंदर कमेटियों को भेज रहे हैं। ये कोई फायदा नहीं ईमान से कि फाइनेंस को भेज दे, एग्रीकल्चर को भेज दें, ये खुद वो मैंने इजाफी तौर भेजा है। मैं ऑलरेडी ये टॉपिक में अपनी एक कमेटी में कर रहा हूँ, क्योंकि नवीद कमर साहब भी बात करेगा इसके बाद, इसको हमने दिया हुआ है। 3रा साल तो हो गया है। आप खुदा के लिए जाते जाते कुछ करें, इसके लिए आपकी कंट्रीब्यूशन है, आपकी दिलचस्पी मैंने देखी है। मैंने उस दिन भी जिक्र किया था बजट स्पीच में कि आज अगर बैठे होते तो मैं पूछता, आप नहीं थे, डिप्टी स्पीकर था, ये एग्रीकल्चर सेक्टर आने वाले दिनों में यही आपको लेके चलेगा, वरना यहाँ भूख इस तरह दुनिया में आ रही है, फूड शॉर्टेज हो रही है। थैंक यू। ये आप इसमें बड़ा टाइम शॉर्ट है। नवीद कमर साहब और फिर नवाब शेर वसीर साहब इसके बाद बात करेंगे। हाँ, इसके बाद नवाब शेर वसीर, नवीद कमर साहब के बाद नवाब शेर वसीर साहब। शुक्रिया जनाब। इसके बाद आप जनाब स्पीकर, ये जो इस वक्त टॉपिक अंडर डिस्कशन था कॉलिंग अटेंशन में, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की भी मैं चाहूँगा कि
ज़रा वो नवीद कंवर साहब प्लीज अटेंशन। सॉरी उमर अयूब साहब, प्लीज। I was just pointing to the fact that we were discussing this issue of agriculture tube wells, and sir, Honorable Minister साहब ने कहा कि 29 बिलियंस दरकार होंगे सिर्फ मेंटेन करने के लिए जो मौजूदा टैरिफ था, लेकिन सर इसके लिए कोई प्रोविज़न किसी बजट में फ़िलहाल रखा हुआ नहीं है, और इस स्टेज पे ये एक्सपेक्ट करना कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमें इस किस्म के पैसे देगी, मेरा ख्याल है कि अनलेस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इसके लिए एफर्ट हो, ये मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, चाहे हम स्टैंडिंग कमिटीज़ में इसको डिस्कस करें या कहीं और। ये तो हो नहीं सकता कि जो एग्रीकल्चर पैकेज है कि उसमें से हम फर्टिलाइज़र सब्सिडी से काट के फिर ट्यूबवेल सब्सिडी पे डाल दें, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए आप होंगे, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब होंगे, ये फाइनेंस से भी, क्योंकि आपका ये पूरा जो हाउस बैठा है ना अक्रॉस, ये सबका इंटरेस्ट है कि ये हो, लेकिन एक हमारी बिल्डिंग है वहाँ उसको कहते हैं क्यू ब्लॉक, उसका इंटरेस्ट नहीं है कि हो, क्योंकि जाहिर है कि वो अपने फिस्कल डेफिसिट को देखते हैं, वो इन चीज़ों को देखते हैं। तो इसके लिए अगर हमें चाहिए कि हम पैसे रखे जाएं, तो सिर्फ़ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही वो एफर्ट करेंगे तो ये होगा, उसके अलावा नहीं होगा, और उनको कन्विंस सिर्फ आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो काइंडली टेक इट ऑन अ पर्सनल लेवल एंड गेट दिस डन, ओनली देन विल द फार्मर्स ऑफ दिस कंट्री बी एबल टू गेट दिस रेट, अदरवाइज नहीं। उमर अयूब साहब प्लीज। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर साहब, नवीद कंवर साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर, आपने भी ये बात कही है कि मेन स्टे है हमारा, बुनियादी तौर पे इसकी वजह से, ज़राअत की वजह से बहुत सारे हमारे अनाज से लेके रोज़गार तक इससे मुंसलिक है। और मैंने पहले भी ऑन रिकॉर्ड हूँ, कॉलिंग अटेंशन के दौरान भी मैंने बात कही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने डॉक्टर हफीज़ शेख साहब को, और बाकी भी उस मीटिंग में हमारे सैयद फ़खर इमाम साहब मिनिस्टर नेशनल फूड सिक्योरिटी मौजूद थे, उन्होंने कहा था मुझे हर हालत में एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना है। मैं वर्बैटम ये फ्लोर पे ऑन रिकॉर्ड ये कोट कर रहा हूँ, मुझे हर हालत में ये एग्रीकल्चरल सेक्टर को सपोर्ट करना है। तो उन्होंने टाइम फ्रेम दिया था, मेरे ख्याल है अगले चंद दिनों में मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी और हफीज़ शेख साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को वो प्रेजेंट करना है कि तरीक़ाकार क्या करना है, टारगेट करना है, वो तरीक़ाकार क्या होगा। और आप भी उनसे आप बात करेंगे, हमारी तो बात होती रहती है, आप भी बात करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर। आप मेहरबानी करें उमर से थोड़ा इस पर वर्किंग करें, क्योंकि आपकी एक मिनिस्ट्री है, मुझे जहां आप समझते हैं मैंने उसमें मेरा रोल बनता है, मैं ज़रूर उसमें अपना रोल प्ले करूंगा, लेकिन आप इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और जो प्रपोजल्स हैं उसमें एक पॉजिटिव तरीके से इसको मूव करवा दें। सर हमने किया हुआ है, मैंने तो फिगर्स भी कोट कर दिए हैं, एक एक फिगर मैंने, एक्यूमुलेटिव फिगर मैंने कोट कर दी है, हमने अपनी वर्किंग की हुई है। उसका तरीक़ाकार जो है वो किसको देना है, वो आपके मुस्तहिक काश्तकारों को, किसानों को मिले, वो तरीक़ाकार जो है वो मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम साहब जो है उन्होंने फाइनलाइज करना है। हमारी तो वर्किंग तैयार है, हमें आप अभी बुला दें, हम लोग तैयार हैं। नवाब शेर वसीर साहब प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मेरा क्वेश्चन बड़ा उमर अयूब साहब से ये है कि मुझे तो 40 साल हुए हैं सियासत में, 40 साल से यही सुन रहा हूँ कि किसान रीढ़ की हड्डी है और किसान खुशहाल पाकिस्तान खुशहाल। ये सुनते सुनते कान थक गए हैं। ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली हमने यही देखा है कि सबसे ज़्यादा मजलूम तबका अगर कोई है तो वो किसान का है। सर एक बड़ी लंबी तफसील है और बड़ी तवील, इस बात पे मैं बोल सकता हूँ, और कभी आप वक्त देंगे तो हम गुजारिशात आपसे करेंगे ऑन द फ्लोर कि जहाँ पे जिस तरह राना तनवीर साहब कह रहे थे, जाते जाते मैं आपसे गुजारिश करूँगा आते आते ये सारे काम हम करें। और ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम आए हैं और हम कोई अपनी नेक नामी और अच्छे काम करके ये दिखा दें कि ये मजलूम जो सेक्टर है, जो सबसे ज़रूरी है, जिससे आगे हर चीज़ ने फलना है,
इंडस्ट्री चल नहीं सकती अगर किसान खुशहाल नहीं होगा। मैं क्वेश्चन सिर्फ छोटा सा है मेरा, लेकिन इसके समरात और इसके नतायज बहुत दूर निकलेंगे अगर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमें उनसे बड़ा अदब है, बड़ा एहतराम है। कल भी हमारी फैसलाबाद की उन्होंने मीटिंग करवाई है, हम बड़े मुतमिन हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन सर सिंपल है कि अगर इंडस्ट्री का बिल करोड़ों में हो तो मीटर नहीं उतारा जाता, और किसान का 2000 का बिल हो तो मीटर उतर जाता है। सर जब हम जिम्मेदार हैं, हम पानी लगाया होता है, हमने फसल काश्त की होती है, तो हमारा मीटर उतर जाए तो हम मफलूज होकर रह जाते हैं, हमारी सारी मेहनत ज़ाया होकर रह जाती है। इसी के साथ एडिशन ये है कि मैंने ट्यूबवेल की दरख्वास्त देता हूँ जब एक बतौर किसान, मेरा डिमांड नोटिस मैं लाखों रुपए देता हूँ, लाखों, ये नहीं होता कि हज़ारों में। ट्रांसफार्मर बहुत महंगा है, मटेरियल बहुत महंगा है, लाखों के हिसाब से मैं पैसे देता हूँ। और जब मैं पैसे दे देता हूँ तो 2000 मीटर ना हो, 2000 रुपया मैं ना दे सकूँ, मतलब थोड़ी सी अमाउंट ना दे सकूँ, तो मेरा ट्रांसफार्मर भी उतार लिया जाता है। सर मुझे मिनिस्टर साहब ये बताएं कि वो ट्रांसफार्मर जिसकी नट बोर्ड तक मैंने बतौर किसान पेमेंट की है, वो मेरी मलकियत है या वापडा की मलकियत है? जिस चीज़ की मैंने कीमत अदा की है वो कीमत मेरी का मुझे फजूल चला जाता है, मेरा ट्रांसफार्मर उतार लिया जाता है, मुझे कोई रिबेट नहीं मिलता। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये छोटे बिलों पर मीटर ना उतारा जाए, किसान को मौका दिया जाए, और उसके साथ जो है ये बताएं मुझे कि वो ट्रांसफार्मर जब मैंने सारे नट बोर्ड तक, खंबे तक, तार तक पेमेंट की है, तो फिर वो मेरी मलकियत है या वापडा की मलकियत है? बहुत शुक्रिया जी। सॉरी उमर साहब प्लीज़। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। कल नवाब साहब और हमारे साथी फैसलाबाद सिटी से फेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव को ही बुलाया था, और नवाब साहब ने वहीं पे भी बात की थी, और हमने कहा था कि जी हम लोग जो हमारे काश्तकार हैं, मेहनतकश हैं, उनको हम लोग फैसिलिटेट करेंगे। जहाँ पे बिल्स की अभी खासकर ये कोरोना के हवाले से जहाँ पे एक मजबूरी बनी हुई है, कई चीज़ें होती हैं, बिल्कुल उनको फैसिलिटेट करेंगे और एकदम जाके इस तरह काटे ना। इसके अलावा या कोई इशू है तो नवाब साहब को हमने डायरेक्ट, मैंने चीफ एग्जीक्यूटिव को वहीं पे इनकी मौजूदगी में, हमारे साथियों की मौजूदगी में ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एरिया से, उनके साथ उनका क्लोज लिएजन होना चाहिए और जेन्युइन है। हमारे हाउस में से कोई आदमी जाके, इलेक्टेड लोग किसी की गलत सिफारिश इस तरह नहीं करते हैं। हमारे पास बमाए मेरे या आपके या बाकी जितने साथी हैं, लोग आते हैं जनाब स्पीकर, कोई मान लेके, कोई एक सोच समझ के कि जी हमारे मसले का हल होगा। कोई ये नहीं कहता कि जी मैंने डकैती की है तो ये ख़त्म कर दे, नहीं। लोग जेन्युइन कंसर्न्स के साथ आते हैं, और वो जेन्युइन कंसर्न्स चाहे वो बिजली का डिपार्टमेंट हो, गैस का डिपार्टमेंट हो, उस पर जो हमारे अफसरान हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि उसकी वो सुनवाई करें, उस पर सुनवाई करें, और उसका जो जायज़ हक है, जायज़ तरीक़ाकार है, उस पर वो काम करें। इस पर दो आरा नहीं है। ये डायरेक्शंस कल भी मैंने दिए हैं। नंबर एक, जहाँ तक तरीक़ाकार आ गया कि वो मलकियत किसकी है, डिमांड नोट, जनाब स्पीकर जब आप डिमांड नोट देते हैं डिपार्टमेंट को, तो आप वो डिमांड नोट दे के उससे परचेज करते हैं। मलकियत जो होती है वो उस इंडिविजुअल की नहीं होती है, डिपार्टमेंट की होती है। बिल ना पे करने की वजह से वो उठाते हैं, पर इस पे ये कोई हरफ आखिर नहीं है कि जी आपने केस टू केस बेसिस पे देखना पड़ता है, आपने इन्वायरमेंट देखना पड़ता है कि एक काश्तकार है, उसकी फसल खड़ी है, तो उसका ये जिस तरह नवाब साहब कह रहे हैं 2000 का बिल है या 1500 का है, तो आप आके उसका सारा कुछ उठा के लेके जाएं, वो ज्यादती है, वो नहीं होनी चाहिए। आपको केस टू केस बेसिस पे देखना चाहिए। मेहरबानी करें, आपके जितनी भी कंपनीज हैं, मतलब उसके चीफ एग्जीक्यूटिव को इंस्ट्रक्शन करे कि वो किसानों तंजीमों के साथ मीटिंग्स करे, इनकी इश्यूज देख ले, बिल्कुल और होगा, उनके फैसिलिटेशन करवाए। बिल्कुल होगा, बल्कि हम लोग अपने साथियों के साथ यहाँ पे उनकी मीटिंग्स भी मैं करा रहा हूँ, शेड्यूल मैंने जारी करा दिया। तो काइंडली आप खुद उसको जरूर जी। अली मोहम्मद खान प्लीज। शुक्रिया स्पीकर साहब, बस सिर्फ 1 मिनट लूँगा। आपकी हिदायत पे मैं गया हूँ, तो हमारे उनको मैंने रिक्वेस्ट की है हमारी सहाफ़ी बरादरी को, और वो अभी वापस भी आ जाते हैं। उनके 2 डिमांड्स हैं। एक तो तनख्वाहों का एक इशू चल रहा है, इसमें काफ़ी पेमेंट तो हो चुकी है, लेकिन कुछ लोगों के रहते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं साथी हमारे भाई जिनको 10-10 या 9-9 महीनों की वो कह रहे हैं कि तनख्वाह नहीं मिली। तो पहले इशू पे तो सर मेरी रिकमेंडेशन जनाब स्पीकर साहब ये है कि आप उसको अगर मेहरबानी फरमाते हैं
और स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन भेज देते हैं। वहाँ मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन जनाब शिबली फराज साहब भी तशरीफ़ ले आएंगे, तो वो इशू वहाँ देख लिया जाएगा। दूसरा, ये कपल ऑफ डेज़ गो एक फायरिंग का वाक़या हुआ है जिसमें इनकी शिकायत है कि उस पर उनकी तसल्ली तशफ़ी प्रॉपर नहीं हो रही, तो उसमें मैंने उनको यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत अपनी सहाफ़ी बरादरी के साथ है, जिसने भी कोई ऐसी हरकत की है उससे पूछा जाएगा। तो उस पर सर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री से जो है रिपोर्ट तलब कर ली जाए जो उसकी कंसर्न स्टैंडिंग कमेटी है। तो ये दूसरा इशू अगर उस कमेटी में भेज दिया जाए तो वहाँ मिनिस्टर फॉर इंटीरियर जनाब इसको कंसर्न कमेटी को रेफर करते हैं। जी अब्बासी साहब, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, आपने 2 मिनट कहा था, जस्ट 2 मिनट्स। स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। मैं पहले भी मैंने टेकअप किया था ये टूरिज़्म के हवाले से और आपने डायरेक्शन भी दी थी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, आपने रूलिंग दी थी। मेरी आपसे गुजारिश है, वहाँ बाबर रहमान साहब ने एश्योरेंस भी दी थी, उन्होंने मीटिंग भी रखी थी, फिर हम कन्वीन नहीं हो सकी। अगर आप उस पर दोबारा डायरेक्शन दें, हमारा मरी से लेके चित्राल तक टूरिज़्म जो है बुरी तरह मुतासर हो रहा है और एक ही महीना है। फिर दूसरी चीज़ जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि हुकूमत ने फौरी तौर पर पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को एकदम से ख़त्म कर दिया। ये पूरी दुनिया में टूरिज़्म के हवाले से पाकिस्तान का बल्कि इस तरह करते हैं अब्बासी साहब, इस पे मैं मीटिंग बुलाता हूँ नेक्स्ट वीक और आपका मैं खुद इसको चेयर करूँगा और कंसर्न मिनिस्टर और जो उसको बुलाते हैं ताकि इसको एक पीटीडीसी के हवाले से 1 मिनट जी। ये पीटीडीसी को फौरी तौर पे हुकूमत ने ख़त्म करने का ऐलान किया है पिछले हफ्ते से। पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 600 मुलाजमीन हैं। पूरी दुनिया में टूरिज़्म के हवाले से पाकिस्तान की ये पहचान है और ये एक ऐसा इदारा है सर फॉरेन टूरिज़्म अट्रैक्ट होता है। आप इस पे डायरेक्शन दें, हुकूमत से पूछें। नहीं, मैं इस तरह से नहीं, आप इस पे कॉलिंग अटेंशन लेके आए ताकि द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन मंडे द 30th July 2020 4 PM at 4 PM